पाथ टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन एंड हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं। जापान हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एंड येस्टरडे वी हैड स्टार्टेड ऑफ विद चाइना। और चाइना के अंदर हम लोगों ने सन यात सेन एंड द राइज ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी माओ, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, अब हमारा जो है नेक्स्ट जो है दैट इज अबाउट हाउ डेमोक्रेसी वाज एस्टैब्लिश्ड। हम लोगों ने डेमोक्रेसी उन लोगों ने कैसे एस्टैब्लिश की थी ये, एंड आगे जो विजन था व्हाट वाज दैट, राइट, दैट वी वुड बी स्टडिंग टुडे। So as I said yesterday, we started off with China. So now, when the People Republic of China, that is the Communist Party of China, which was established in 1949, it was based on the principles of what we call as New Democracy. उनका था तो वो कम्युनिस्ट पार्टी, बट उनका जो था मेन मुद्दा था डेमोक्रेसी। एन अलायंस ऑफ ऑल सोशल क्लासेस। अभी इसमें अगर आप हम लोग अगर आपको याद हो तो टेंथ में हम लोगों का था दैट वी डिड नॉट हैव व्हाट वी कॉल एज डेमोक्रेसी के अंदर हम कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं या चाइना बोलते हैं, वी डोंट कॉल इट कंप्लीट डेमोक्रेसी बिकॉज इट डिड नॉट हैव अ प्रॉपर पार्टी सिस्टम। लेकिन जो वहां पर लोग और पार्टी से उनका एक अलायंस होता था जो उनको सपोर्ट करते हैं। Unlike the dictatorship and proletarian, then the Soviet Union said it had established. Critical areas of economy were put under government control and private enterprises and private ownership of land were gradually ended. हाँ, ये जो मतलब कि measure था, this was even taken up by USSR also. This program lasted till 53 when the government declared it would launch a program of socialist transformation. The Great Leap Forward movement, launched in 58, was a policy to galvanize the country to industrialize rapidly. As I already have been telling you कि पहले उन लोगों ने अपना closed door policy रखा हुआ था. People were encouraged to set up steel furnaces in their backyards. In the rural area, people's communes where land would be collectively owned. Communes होता है जहां मिलकर वो लोग जो है खेती बाड़ी करते हैं, were started. By 58, there were 26,000 communes covering 98% of the farm pollution. और ये जो communes वाला जो मतलब की definition है, this is there in Socialist Republic of Russia also. Communes होते हैं जो मिलकर, community हम बोलते हैं communes, उससे start होता है. Mao was able to mobilize the masses to attain the goal set by party. His concern was creating a socialist man who would have five loves. That is, आपके क्या क्या है? Fatherland, people, labor, science and public property. ये उसके जो है 5 important areas थे. Mass organizations were created for farmer, women, students, and other groups. For instance, the All China Democratic Women Federation had 76 million members. The All China Students 3.29 million. These objectives and method did not appeal to everyone in party. In 53, 54, some were urging for more attention to industrial organization and economic growth. Similar ऐसा जो हमारा 5 year plan जब इंडिया के अंदर बना था तो ऐसे ही मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस थे। सबको गवर्नमेंट के पॉलिसीज जो है वो पसंद नहीं आ रहे थे। लियू शॉची एंड डेंग जियोपिंग, ये जो डेंग जियोपिंग है ना, यही आपको रिमेंबर करना बिकॉज ओपन डोर पॉलिसी बाद में इनके थ्रू ही हुआ था. Tried to modify the commune system as it was not working efficiently. The steel produced in the backyard furnaces was unusable industrially. भाई अब घर में आप स्टील बनाओगे तो it would not be having the same kind of efficiency बोल सकते हो, and also उसके उसमें जो है वैसा पॉलिश नहीं होगा.
तो डेफिनेटली इट नीडेड समथिंग। और उस वक्त में जो उन लोगों का एक पॉलिसी था, जिसको हम लोग बार बार मैं मतलब कि बता रही हूँ, जो यहाँ नहीं है, वो था आपका क्लोज डोर, यानी कि दे डिड नॉट वांट टू रिलाई ऑन फॉरेन मटेरियल्स। उनको था कि सब कुछ वहीं पे हो। वेर एज देयर वर पीपल जो कि चाहते थे कि ओपन डोर करके देयर शुड बी मोर एंट्रेंस, और आपका वेस्टर्न वेस्टर्न कल्चर जो वेस्टर्नाइजेशन है उसको थोड़ा सा अडॉप्ट करना होगा। The conflict between Maoists wanting to create a socialist man and those who objected in his emphasis on ideology rather than expertise. मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, उसकी जो आइडियोलॉजी थी, दैट वाज बहुत अच्छा है अपने ही घर के अंदर, अपने ही कंट्री में सब कुछ बनाना, बट क्या हमारे पास वो एफिकेसी है? This culminated in Mao launching the Great Proletarian Cultural Revolution in 1965 to counter his critics. उसने ये वाला movement start किया. The Red Guards कौन थे? Mainly students and army, was used for a campaign against old culture, old custom, old habits. Students and professionals were sent to countryside to learn from the masses. Ideology was more important than having professional knowledge. Demic denunciation and slogans replaced rational debate. मतलब एक तरफ से बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम देखें कि आइडियोलॉजी पर हम लोग जो है वी कैन नॉट सस्टेन, वी ऑल्सो नीड टू हैव द एक्सपर्टीज, वी ऑल्सो नीड टू हैव द प्रोफेशनल नॉलेज. The Cultural Revolution began a period of turmoil, weakened the party, and severely disrupted the economy and educational system. From late 60, the tide began to turn. In 75, the party once again laid emphasis on great social discipline and need to build an industrial economy so that China could become a power before the end of the century. उन्होंने ये जो है 19th सेंचुरी के एंड तक, दैट इज 2000 आने से पहले पहले, दे वांटेड टू बिकम. सो व्हाट वर द रिफॉर्म्स दैट दे डिड? एज आई ऑलरेडी हैव सेड, ओपन डोर पॉलिसी हम उसको बोलते हैं अपने पॉलिटिकल टर्म्स के अंदर. उसने काफी चीजों में यहाँ पर चेंज किया था. द कल्चरल revolution was followed by a process of political maneuvering. Deng Xiaoping kept party control strong while introducing a socialist market republic. The party declared its goal as the four modernization. ये इसमें भी है हमारे, और 12th में बोर्ड्स में भी है ये वाला सेम चीजें. That is science, industry, agriculture and defense. ये उसके 4M थे. These were the 4M's that he wanted. Debate was allowed as long as the party was not questioned. In this new and liberating climate, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि it's also called as an open door, as at the time of May 4th movement 60 years ago, there was an exciting explosion of new ideas. A wall poster, the fifth modernization proclaimed without democracy, the other modernization would come to nothing. It went on to criticize the CCP for not solving the problem of poverty, ending sexual exploitation, even citing cases of such abuse from within the party. अब लोगों ने कहा कि 4M नहीं, हमें फिफ्थ एम भी चाहिए, और वो जो फिफ्थ एम है वो है डेमोक्रेसी. और डेमोक्रेसी क्यों था? क्योंकि उनका मानना था कि वहां पर जो है बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन था, इवन पार्टी के अंदर भी. These demands were suppressed, but in 1989, on 7th anniversary of May 4th movement, May 4th एक movement है बेटा, many intellectuals called for greater openness and end to ossified dogmas. Student demonstrators at Tiananmen Square in Beijing were brutally repressed. This was strongly condemned around the world. बट हुआ क्या? उनके इन मांगों को जो है सप्रेस करने की कोशिश की गई. जो इंटेलेक्चुअल से डॉगमास, मतलब ऑसिफाइड डॉगमास, मतलब कि डिक्टेटर, इन अदर वर्ड यू कैन से अ डिक्टेटरशिप, जबरदस्ती, लेकिन लोगों को मारा पीटा गया, which was criticized by the entire world. The post-reform period has seen the emergence of debates on ways to develop China.
The dominant view supported by party is based on strong political control, economic liberalization, integration into the world market. ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, मींस पार्टी का कंट्रोल उनके पास ही रहेगा, लेकिन इकोनॉमी में जो लिबरलाइजेशन वर्ड होता है उसका मतलब होता है ज्यादा ओपननेस, टेक्नोलॉजी को लर्न करना। एंड देन पहले क्या होता था, इवन इन इंडिया ऑल्सो देयर वर एरियाज जहां पर एक्सपोर्ट वाज नॉट अलाउड, लेकिन इन दी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जिसको हम लोग कह सकते हैं, हम उसको मतलब कि वी कॉल इट एज एलपीजी, liberalization, privatization and globalization, the global world is opened, मतलब आपका जो बिजनेस है वो अक्रॉस द वर्ल्ड हो सकता है। Critics argue that increasing inequalities between the social group, between regions, between men and women are creating social tensions and question the heavy emphasis on the market. Finally, there is a growing revival of earlier so called traditional ideas of Confucianism, arguments that China can build a modern society following its own tradition rather than simply copying the West. ये हमेशा ही रहेगा, कहीं पर भी आप जाते हो, ये जो डिबेट है मॉडर्नाइजिंग विदाउट लीविंग योर रूट्स, ये क्वेश्चन हमेशा रहता है, बट कई बार क्या होता है प्रैक्टिकली सच थिंग्स बिकम डिफिकल्ट। बट यस, वी शुड नॉट कंप्लीटली कॉपी एनीथिंग। अपने जो आइडियाज हैं, अपने जो कल्चर है, अपना जो ट्रेडिशन है, उसको वी मस्ट कीप एट द बेस। मतलब दिस इज वन मैसेज यू कैन से, अ लर्निंग वी कैन से, like in Japan it is still there. Now come to Taiwan. Chiang Kai-shek defeated by CCP, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ने हरा दिया था, fled to Taiwan with over US 300 million in gold reserves and crates of priceless art treasures and established the Republic of China. Taiwan had been a Japanese colony since the Chinese ceded it after 1894-95 war with Japan. The Cairo Declaration, कायरो में हुआ था ये, in Egypt, and पोसम प्रोक्लेमेशन रिस्टोर्ड सोवरेनिटी टू चाइना, पर ये चाइना के अंडर आ गया। ताइवान का भी, हांगकांग का भी एक मतलब कि वो रहता है, मतलब अगर आप रियल में चाइना के हिस्ट्री या चाइना के पॉलिटिक्स को पढ़ते हो, यू वुड ऑलवेज हैव दिस। जैसे जब हम जापान के बारे में पढ़ते हैं तो कोरिया के बारे में हम लोगों को पढ़ना होता है। सिमिलरली, massive demonstrations in February 47 had led the GMD to brutally kill a whole generation of leading figures. The GMD under Chiang Kai shek went on to establish a repressive government forbidding free speech, political opposition, excluding the local population from positions to power. मतलब उन्होंने एक ऐसा गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया जहां ताइवान, जो कि पहले जापान का एक हिस्सा था, मैप में देखोगे तो यू विल फाइंड इट ऑन द एक्सट्रीम्स, उस तरफ ईस्टर्न साइड, उसको उनको जो है दे वर नॉट गिवन एनी राइट्स, एंड वहां पे जो लीडिंग लीडर्स थे उनको मार कर एंड उनका फ्रीडम जो टू स्पीच है उसको हटा दिया। However, they carried out land reforms that increased agricultural productivity, modernized the economy, so that by 73 Taiwan had a GNP second only to that of Japan in Asia. और इस तरीके से क्या हुआ, they became second most developed nation in Asia, जापान के बाद। The economy, largely dependent on trade, has been steadily growing, but what is important is the gap between rich and poor has steadily declined. मतलब बहुत बड़ी बात है, रिच और पुअर के बीच का गैप को डिक्रीज करना जो है किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज होता है। Even more dramatic has been the transformation of Taiwan into a democracy. It began slowly after the death of Chiang in 75 and grew in momentum when martial law was lifted. In 18 martial law यही होता है, freedom of speech आपका, freedom to assemble. It's a law by the military, and opposition parties were legally permitted. The first free elections began the process to bringing local Taiwanese to power. Diplomatically, most countries have only trade missions in Taiwan. Full diplomatic relations and embassies are not possible as Taiwan is considered to be part of China. हालांकि चाइना के सॉरी ताइवान के अंदर उन लोगों ने जो है एक मतलब वो तो रख दिया है, इट इज
इट हैज द डेमोक्रेसी, वहाँ अपोजिशन पार्टी है, इलेक्शंस भी होते हैं, लेकिन फिर भी ताइवान को अलग कंट्री नहीं मानी जाती है। तो सिर्फ जो भी रिलेशन है कंट्रीज का उनके साथ विथ ट्रेड रिलेटेड, वहां वो उनके साथ में डील करते हैं। अदरवाइज कोई भी फॉरेन पॉलिसी कुछ भी होती है तो वो उनके साथ, ताइवान को उसको एज अ कंट्री नहीं माना जाता, चाइना का एक पार्ट माना जाता। तो जो फॉरेन पॉलिसी चाइना के साथ है वही उसके लिए एप्लीकेबल होता है। The question of reunification with mainland remains a contentious issue, but cross-strait relations, that is, Taiwan and China, have been improving. And Taiwanese trade and investments in the mainland are massive, and travel has also become easier. China may be willing to tolerate a semi autonomous Taiwan as long as it gives up any move to seek independence. मतलब माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में ताइवान को कुछ अपने पावर्स दे दिए जाए, बट इट शुड नॉट से ताइवान शुड बी अ सेपरेट कंट्री। ये मतलब एक बहुत बड़ी लड़ाई है। लाइक अगर हम लोग तिब्बत के बारे में बात करते हैं, सिमिलर प्रॉब्लम्स आर देयर विद चाइना, चाइना के साथ ही है वो भी, क्योंकि तिब्बत वैसे तो चाइना मानती है कि इट इज पार्ट ऑफ देयर कंट्री, लेकिन तिब्बतियंस एंड वहां के जो मेन मतलब दलाई लामा जी जो है, ही दे आर्ग्यू कि तिब्बत हैज बीन अ सेपरेट पार्ट। इस वजह से वहां पर आपका जो है द इश्यूज आर वेरी कंटेंशियस, काफी उसमें रहता है। और इसी वजह से कई बार हमारे इंडियन रिलेशंस भी उनके साथ में थोड़े खराब हुए हैं, बिकॉज वी हैव सपोर्टेड तिब्बत इन दैट वे। तो सिमिलरली आपका ताइवान है, ऐसा सेम इसी तरीके का सिचुएशन इज समवेयर इन हांगकांग ऑल्सो, बिकॉज हांगकांग ऐसे देखा जाए तो चाइना का पार्ट है, बट हांगकांग में पीपल दे बिलीव दैट दे आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये सब एरियाज बाद में चाइना के अंडर आए थे, बट स्टिल ताइवान इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया फॉर चाइना। So now, two roads to modernization. Industrial societies, far from becoming like each other, have found their own path to become modern. The histories of Japan and China. जापान 40 years में हुआ, चाइना को थोड़ा टाइम लगा. Sure, different historical conditions led them on widely divergent paths to building independent and modern nation. Japan was successful in retaining agriculture and using traditional skills and practices in new ways. However, its elite driven modernization generated an aggressive nationalism, helped to sustain a repressive regime that stifled dissent and demands for democracy, and established a colonial empire that left a legacy of hatred in the region as well as distorted internal developments. Japan's program of modernization was carried out in an, ये वाला जो पेपर में आपके आएगा क्वेश्चन, ये आपका मतलब इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन। एंड सेकेंडली ये है आपका डिफरेंस बिटवीन, मतलब दोनों के आइडियोलॉजीज में क्या डिफरेंसेस थे। दिस इज द क्वेश्चन विच यू विल बी गेटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट। Was carried out in an environment dominated by Western imperial power. While it imitated them, it also attempted to find its own solution. Like हम जापान के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने आफ्टर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उन्होंने अपना एक क्लॉज रखा था, नो वॉर। दूसरा, उन्होंने इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए दे ऑल्सो एडेड एनवायरमेंटल का जो डिग्रेडेशन है दैट शुड नॉट बी देयर, वो इनका एक की पॉइंट था। Japanese nationalism was marked by three different compulsions. While many Japanese hoped to liberate Asia from Western domination, for others, these ideas justified building an empire. It is important to note transformation of social and political institutions and daily life was not just a question of reviving tradition or tenaciously preserving them, but rather creatively using them in new and different ways. हम नॉर्मली हमारी जो एक लड़ाई होती है ना, वो होती है कि भाई जैसे हम आप हमारे घर मतलब किसी के घरों में भी आप देखोगे, बड़े लोगों का मानना होता है देर आर सर्टेन एरियाज जिसको हमें ट्रेडिशनल वे में यूज करना चाहिए, वेयर एज यंगस्टर्स मोर और लेस दे प्रेफर मॉडर्न वे। तो जो जापान का जो सिस्टम था उनका मानना था कि ट्रेडिशन को कायम रखते हुए आपको मॉडर्नाइजेशन यूज करना है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस के थ्रू उसी को आपको मॉडर्नाइजेशन के अंदर लेकर आना है।
एक इसका एक सिंपल एग्जांपल इज यूज ऑफ आयुर्वेदा. आयुर्वेदा इज अ ट्रेडिशनल सिस्टम, बट जब हम मेडिसिन में उसको लेकर आते हैं तो इट बिकम्स अ मॉडर्न वे. फॉर इंस्टेंस द मेजी स्कूल सिस्टम मॉडल on European and American practice introduced new subjects, but the curriculum was to make loyal citizens. A course on morals that stressed loyalty to the emperor was compulsory. Changes in family or daily life show how foreign and indigenous ideas were brought together to something new. मतलब ये तीन वो एग्जाम्पल हैं जिसे हमें पता लगता है उन्होंने अपने ट्रेडिशन को छोड़ा नहीं था, उसको अपने प्रैक्टिस में लेकर आए थे, बट विद द मॉडर्न आइडियाज. ये आपका जापान का था. नाउ फॉर चाइना वाज वेरी डिफरेंट. Foreign imperialism, both Western and Japanese, combined with a hesitant and unsure Qing dynasty to weaken government control and set the stage for a breakdown of political and social order, led to immense misery. Warlordism, then banditry and civil war. मतलब वहां पे आपसी झगड़ा, then लूट पाट, गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाना was very कॉमन, और इसकी वजह से लोगों की जान जाती थी. एज डिड द सेवेजरी ऑफ द जापानीज इन्वेजन. नेचुरल डिजास्टर एडेड टू द बर्डन. मतलब उनके लिए तो ये सब चीजें एडेड थी. एक तरफ अंदर ही जो है पॉपुलेशन वॉज मतलब कि डिससेटिस्फाइड, ऊपर से जापान का इन्वेजन, ऊपर से आपके जो है नेचुरल डिजास्टर्स. The 19th and 20th century saw a rejection of traditions and search for new to build national unity and strength. The CCP and its supporters fought to put end to tradition, which they saw as keeping the masses in poverty. उनका मानना था कि अगर आप ट्रेडिशनल वे से चलते हो, लाइक फर्नेसेस आपके पीछे हैं, आप घर में इंडस्ट्री रख रहे हो. अब हमारे इंडिया के अंदर भी इन बिजनेस स्टडीज अगर हम पढ़ते हैं तो एक चीज हम पढ़ते हैं, हम हमारे लिए इंडस्ट्रीज का नाम क्या है? हम जैसे ही बोलेंगे हम कहेंगे टाटा, रिलायंस, देन अदानी ग्रुप. और बताओ कितने बता सकते हो आप? यू विल बी काउंटिंग इट ऑन फिंगर्स, यू विल बी काउंटिंग इट ऑन फिंगर्स. वेरस अगर हम अपने एमएसएमईज को देखते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम बिजनेस को देखते हैं, तो 95% ऑफ द इंडस्ट्रीज आर अंडर माइक्रो लेवल्स. एंड ये जो 95% है, इनमें से 46-47% आर रूरल एरिया. जो रूरल एरियाज के अंदर घरों के अंदर इंडस्ट्रीज है. नेचुरल है कि घर के अंदर जो इंडस्ट्री होगी उसमें वो टेक्नोलॉजी नहीं होगी जो कि एक बड़े इंडस्ट्री में होगी. एंड दैट इज वाई जो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री होता है वो कहीं ना कहीं स्लैकन हो जाता है, कम हो जाता है. तो यही वहां पर एक लड़ाई थी कि भाई ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो है दे वर नॉट गिविंग दैट आउटपुट. देन द विमेन subjugated and the country underdeveloped. In fact, there was a time when चाइना को ऐसा माना जाता था. एंड उसको ऐड करते हुए चाइना का एक बहुत ही मुसीबत था, वो था द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. फिलहाल के तो हम नंबर वन पे हैं. हम किसी ना किसी में नंबर वन में रहते हैं, चाहे वो मोस्ट पॉपुलस में क्यों ना हो. While calling for power to the people, it built a highly centralized state. Centralized इसलिए क्योंकि they did not have an opposition party. जो भी उनके उसमें इलेक्शंस में खड़े होते हैं, they are either from communist party or people belonging to their allies. जो उनके 7 party system है उन्हीं के members होते हैं. The success of the communist program promised hope, but its repressive political system turned the ideals of liberation and equality into slogans. Yet it did remove century old inequality, spread education, raise consciousness among people. इसका आगे का पार्ट आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हो इन 12th स्टैंडर्ड, जिसमें हमें पता लगता है कि सम ऑफ द रीजन्स आर स्टिल अंडर पॉपुलेटेड, या सॉरी अंडर डेवलप्ड स्टिल. लेकिन जो उनके कोस्टल एरियाज हो गए, उनके जो मेन एरियाज हो गए इंडस्ट्रियल, वो सब कुछ बहुत अच्छे से डेवलप हो चुके हैं. द पार्टी हैज नाउ कैरिड आउट मार्केट रिफॉर्म्स. ऑलरेडी आपको बताया कि जब हम इकोनॉमिक पॉलिसीज बोलते हैं तो वहां हम लोग लिबरलाइजेशन यानी कि कुछ छूट हम देते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज को हम प्राइवेटली प्रैक्टिस करने का
अलाउ करते हैं एंड ग्लोबल मार्केट में एंट्री देते हैं, यानी कि अपना सामान बेचना या खरीदना। और आज आपको पता है, एज आई यस्टरडे आई हैड ऑलरेडी टोल्ड, कि हम कुछ भी यूज कर रहे हैं आज। आप पिन यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, आप एक मतलब यू आर यूजिंग अ ब्लैंकेट और काइट उड़ा रहे हो। मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम चाइना। ये उन लोगों ने अपना जो है मार्केट को रिफॉर्म किया है। And this has now made China economically powerful, but its political system continues to be tightly controlled. और वो एक बहुत बड़ा डिबेट हमेशा रहा है, क्योंकि वहां पर you don't have the party system of democracy. Even though elections are there, but they cannot be called as democratic elections since there is no choice for the people. The society now faces growing inequality as well as a revival of tradition long suppressed. This new situation again poses question of how China can develop while retaining its heritage. और ये बिकॉज हम यहाँ पर फ्रॉम द हिस्ट्री पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री का जो हमारा एक मेन आइडिया होता है वो होता है कल्चर, मेंटेनेंस ऑफ आवर कल्चर. हिस्ट्री ऑलवेज focuses on what we call as culture. हम हिस्ट्री क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री में मॉन्यूमेंट्स पढ़ते हैं. हिस्ट्री में हम लोग जो है वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज हेरिटेज. हेरिटेज क्या है? हम किसी भी जगह की जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ का हेरिटेज क्या, वहाँ की हिस्ट्री क्या, वहाँ की मिथोलॉजी क्या, वो पढ़ते हैं. तो उस हिस्टोरिक सेंस में अगर देखा जाए तो द हिस्टोरियंस एंड द इंटेलेक्चुअल्स वांट दैट जो करंट सिचुएशन है दैट शुड बी देयर, बट इट शुड ऑलवेज ब्लेंड विद हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड हेरिटेज. तो इस दो एरियाज, दो इनफैक्ट कंट्रीज को हमने पढ़ा, समझा, उनके हिस्टोरिकल सेंसेस को समझा, उनके इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा, Japan and China, and we have read or we can say we have understood the differences जो चाइना और जापान ने किया, because both of them are said to be one of most developing और developed countries के अंदर आते हैं. इसीलिए हमने इन दोनों के बारे में हम लोगों ने जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ा, टुवर्ड्स पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन. तो व्हाट वर द दोस एरियाज जहां उन लोगों ने चेंज लेकर आए थे, कहाँ चेंजेस मांगे गए थे, एंड हाउ दे रिएक्टेड टू द चेंजेस टू मेक द मॉडर्न जापान और चाइना. So with this, the chapter Paths to Modernization is complete along with NCERT, right?